अविनाश हाँ जी रणदीप जी। सर चैट में टाइप कर दीजिए जजमेंट का नाम प्लीज। नहीं हमें बता दीजिए, हमें बता दीजिए। एक सेकंड रुकिए, आई हैव टू सी दिस, चेक इट आउट कि ये कैसे होगा। नहीं सर, आप हमें बता दीजिए ना। हाँ तो लिखिए, मैं कॉपी ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसकी। अच्छा ओके, उसका लिखिए सकातर सिंह वर्सेस सतावर, सकातर SAKATAR वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, साइटेशन AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट 2570। सुरेंद्र जी, जो आपने जजमेंट शेयर की थी वो मैं शेयर करूं स्क्रीन पे? सुरेंद्र जी? हाँ जी। एक मिनट। सुरेंद्र जी जजमेंट। जी बोलिए। हमें स्क्रीन पे तो नहीं, स्क्रीन पे नहीं आ रही? नहीं स्क्रीन पे नहीं आई सर। एक मिनट। शेयर स्क्रीन इस पे करो क्या? हाँ जी। नहीं अब आ गई? हाँ जी जी। अभिषेक जी अब इसको देखिए आप, पैरा नंबर 18 देखता हूं सर। पुष्कर जी नेक्स्ट पैरा नंबर 19। Abhishek ji, now see, the term hearsay is used with reference to what is done or written as well as to what is spoken, and its legal sense it denotes that kind of evidence which does not derive its value solely from the credit given to the witness himself. It means witness की वो खुद की statement नहीं है. He has not perceived it, he has not understood something, he has not seen. It denotes that kind of evidence which does not derive its value solely from the credit given to the witness himself, but which rests also in part on the veracity and competence of some other person. The word hearsay is used in various senses. Sometimes it means whatever a person is heard to say. Sometimes it means whatever a person declares on information given by someone else. And sometimes it is treated as nearly synonymous with irrelevant. The sayings and doings of third person are as a rule irrelevant, so that no proof of them can be admitted. Every act done or spoken which is relevant on any ground must be proved by someone who saw it with his own eyes and heard it with his own ears. तो ये हेयरसे में दोनों प्रिंसिपल्स जो है एब्सेंट रहते हैं कि the person making the statement, he has not seen it himself, he has not heard it himself, but the information has been passed to him through some source. The source may be identified or unidentified. Identified means कि वो जाके ये कहे कि मुझे बी ने बताया, unidentified कि मैंने सुना, but now he cannot tell कि वो कौन था, इसके particulars क्या हैं. Normally जो हम gossips की बात करते हैं या मार्केट में गए तो एक rumors की जो बात होती है. बिल्कुल ठीक है सर। अगेन आप पॉइंट 20 एंड 21 आप पढ़ेंगे तो ये क्लियर है इसमें कि हेयरसे को क्रिस्टल क्लियर डिफाइन किया है. मैंने ये जजमेंट शेयर कर दिया है ग्रुप के अंदर, और ये मेरे 22 नंबर में कंक्लूजन है शर्मा जी. हाँ जी. अब अभिषेक जी की बात का जवाब है पैरा नंबर 22 में.
the reason why hearsay evidence is not received as relevant evidence are the person giving such evidence does not feel any responsibility. The law requires all evidence to be given under some oath or some personal responsibility. Every witness must give his testimony under such circumstances as expose him to all the penalties of falsehood. If the person giving hearsay evidence is cornered, he has a line of escape by saying, I do not know, but so and so told. क्योंकि वो तो पहले ही आगे बता रहा है कि मेरी पर्सनल नॉलेज नहीं है, उसने मुझे बताया था. Now search for that person. Truth is diluted and diminished with each repetition. I am clear about hearsay. I am not saying I didn't get the meaning of hearsay. Sir Abhishek, then again I am sorry to interrupt, but what is your specific question regarding hearsay? Where is the confusion lies? Sir, अभिषेक जी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में आप बता सकते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है ताकि हम आंसर दे पाए. आप एक्सप्लेनेशंस भूल जाइए, एविडेंस एक्ट भूल जाइए, डिस्कशंस भूल जाइए. आप ये बताओ कि भाई दिस इज माय क्वेश्चन, वी विल आंसर. सर मेरा क्वेश्चन तो गुम हो चुका हवा में अब तक. जो क्वेश्चन मैंने पूछना शुरू किया था, उसके बाद आप दोनों की जो वैल्यूएबल सजेशन है सेक्शन 6 से जो आप डिफाइन करने लगे, वो मेरी क्वेश्चन को कहीं और ले गया. तो आई ड्रॉप दैट. और मैंने तब भी आपको कहा था कि आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों ने जो बताया है वो किसी भी तरह से मेरे को समझ ना आया हो. ऐसा नहीं है. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड. अभिषेक जी, वी आर नॉट सेइंग, बात क्वेश्चन ये नहीं है कि समझ आने. क्वेश्चन है कि मैं जो फर्स्ट आपका डाउट था वेदर वी आर एबल टू क्लियर दैट और नॉट. अगर स्टिल वो डाउट है मेरा तो सर मैं आपको यही बता रहा था कि मेरा कोई डाउट नहीं था. Yesterday the doubt was raised by Randeep ji. तो फिर रणदीप जी बताएं कि ये satisfied है. उसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा था. जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को पूछा था. पुष्कर जी इस चीज को देख के हंस रहे थे. ये भी हेयर से हो गया ना. अभिषेक जी कह रहे हैं रणदीप से पूछो, मुझे नहीं पता. आप बिल्कुल सही पकड़े हैं इस समय सर. आप रणदीप जी आप बता दीजिए आप इसीलिए एक्सक्लूड किया जाता है. रणदीप, मैंने जो वेबिनार का एग्जांपल दिया था सर, मैंने जो वेबिनार का एग्जांपल दिया था, उसमें अभिषेक सर वाज नॉट एग्री कि आई एम सेइंग कि वो हियर से नहीं है. चलिए, अभिषेक सर वाज सेइंग कि वो हियर से है. आई थिंक तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, बल्कि जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था उस पे अभिषेक सर का ऑब्जेक्शन था कि दिस इज रॉन्ग. बट आई एम सेइंग ना तो मैं गलत हूं ना अभिषेक सर गलत थे. थोड़ा सा मैं गलत हूं, थोड़ा सा अभिषेक सर गलत है. कोई भी स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस कंटेक्स्ट में दी जा रही है, अबाउट व्हाट फैक्ट. लाइक अगर सेक्शन 6 जुड़ जाता है तो किस कनेक्शन के साथ वो थी. एक ही स्टेटमेंट हियर से भी हो सकती है, एक ही स्टेटमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, जो मैंने एनालाइज किया आज के डिस्कशन पे. रणदीप जी आई एम इंटरप्टिंग सर. अगर कोई एविडेंस डायरेक्ट है, you cannot take that into the category of hearsay first, and vice versa is also true. If some statement comes under the category of hearsay, you cannot say that it is a direct. सही है. आप कोई भी एक एग्जांपल दे दीजिए, एनी सिंगल एग्जांपल ऑन बोथ द थिंग. सर ये अभी ए और बी वाला जो हमने डिस्कस किया था एग्जांपल स्टैब्ड वाला जी, अगर ए ये कह रहा है कि सी ये कह रहा है कि ए ने बी को मारा जी, दिस वुड बी द हियरसे. अगर सी ये कहता है कि बी ने मुझे बताया कि ये हियर से है, सॉरी कि ए ने मुझे मारा, तो वो हियर से होगा. वो हियर से जब होगा अगर वो इन रिस्पेक्ट टू डेथ लिया जाए. अगर वो इन रिस्पेक्ट टू दैट स्टेटमेंट के पर्पज से लिया जाए तो वो डायरेक्ट ही कहलाएगा. नहीं देखिए, नहीं फिर कंफ्यूजन. मैं बता रहा हूं. आपके दोनों एग्जांपल हियर से है, जो आपका सेकंड एग्जांपल है जो बिल्कुल ठीक है, दोनों ही एग्जांपल्स हियर से हैं.
पहले कैटेगरी में if A dies and before dying he is giving a statement to B, so then there is a specific section 32 which covers this under the heading of dying declaration. सर मैं एज इट इज रीड कर देता हूँ, सॉरी टू डिस्टर्ब। नहीं एक मिनट, और उसकी रेलेवेंस क्यों है डाइंग डिक्लेरेशन की, वो कैटेगरी टर्म्स में सेक्शन 32 में दिया हुआ। करेक्ट। अब मैं दोनों एग्जांपल्स पे आ जाता हूँ। अब नाउ ही हैज नॉट डाइड, तो अभी हम डाइंग डिक्लेरेशन की बात नहीं कर रहे। नाउ A has stabbed B, okay, and B has told this fact to C. One thing. Secondly, now C has come to know from any other sources that A has stabbed B. Now C is coming before the court into the witness box and is giving a statement. First statement, that B told me that A stabbed him. B. First. Second, C is saying that I came to know that A has stabbed B or A stabbed B. Both the statements are hearsay. You are telling that the first one, which he is saying that B told me that A stabbed him, is direct statement, and second one would be hearsay. I say both are hearsay. चलो, I'll agree with you, sir. इसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सर। हम मिस क्या कर रहे हैं इसमें? हाँ जी, हम इसमें ना सिर्फ कॉज को देख रहे हैं, सॉरी कॉन्सिक्वेंस को देख रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। नहीं कॉन्सिक्वेंस अभी देखिए, मैं पहले बता। Now don't go into the details ki what could be the relevance of these two statements. I'm not talking about that. नहीं, रेलेवेंस की बात नहीं कर रहा सर मैं। रेलेवेंस एज अ सब्सिक्वेंट स्टेज है कि किसी कोई डॉक्यूमेंट या कोई स्टेटमेंट की रेलेवेंसी है तो कितनी है या क्या है। 2 मिनट दीजिए सर, मैं मुल्ला का एक एग्जांपल है, एज इट इज रीड कर देता हूं उसको विद एक्सप्लेनेशन। मुल्ला एक एग्जांपल देता है सर, A stabbed B. B tells C that A stabbed me. C says in court B told him that A stabbed him. अब इसके दो connotation आ जाते हैं सर। If this statement is regarding a death, then it will fall in exception of section 32. Hearsay evidence. पहले ही क्लियर कर दिया, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। Secondly, if this admitted in respect of statement only, it is a direct evidence. Thirdly, in case of dying declaration, however the witness gives the testimony of the declaration made by the victim regarding the cause of his death, which the witness heard himself from the victim, and it is direct testimony of dying declaration and cannot be said to be the hearsay evidence. ये मुल्ला के अंदर एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे हैं सर, ये मैंने पढ़ के सुनाया। देखिए, आप अगर लास्ट लाइन पढ़ेंगे, वो इन रिस्पेक्ट टू डाइंग डिक्लेरेशन की बात कर रहा है। हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन के लिए तीन कॉनोटेशन बन गई ना सर, 3 कॉनोटेशन बन गई। एक ही स्टेटमेंट कहीं पे हियरसे है, कहीं डायरेक्ट बन रही है, कहीं इनडायरेक्ट बन रही है। सर वो देखिए, फिर कंफ्यूजन है। स्टेटमेंट फॉल्स अंडर हियरसे। आपसे ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नहीं देखिए, स्टेटमेंट फॉल्स अंडर द हियरसे बट इज स्क्वेयरली कवर्ड अंडर द एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 32। अच्छा, इसमें ये लाइन का मतलब समझाइए सर। इफ दिस एडमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेटमेंट ओनली, देन इट इज अ डायरेक्ट एविडेंस। ये लाइन है सर, यहीं से स्टार्ट होती है और इसी पे खत्म होती है। लेकिन ये अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये इन रिस्पेक्ट टू डाइंग डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ। इन रिस्पेक्ट टू डाइंग डिक्लेरेशन अलग पॉइंट है सर, वो अलग पॉइंट है। ये इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय ए की बात कर रहा है, जहां वो मेड बाय सी सर, स्टेटमेंट सी दे रहा है सर, सी दे रहा है। नहीं, अगर जैसे बी ने कहा कि मेरे को ए ने चाकू मारा, बी सेड दैट ए स्टैब्ड मी, ये बात ये है ना। बी सी कोर्ट में डिपोज करता है कि ए टोल्ड मी, ना बी टोल्ड मी ए स्टैब्ड मी, बी टोल्ड मी दैट ए स्टैब्ड मी। सी हैड हर्ड हिमसेल्फ फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द माउथ ऑफ बी victim, this was the statement I heard from the mouth of B, whereas that statement, as far as that statement is concerned, हाँ उसने ये statement दी थी, वो तो direct evidence है।
लेकिन as वही far मैं as कह रहा हूँ murder सर। goes, as far as murder goes, कि भी उसने उसको मारा कि नहीं मारा, वो एक हियर से एविडेंस है। अगर उसकी स्टेटमेंट को हमने एग्जामिन करना, हाँ बी ने ऐसा बोला था, अब वो बी ने सच बोला था कि गलत बोला था, दैट हैज टू बी एग्जामिन्ड। हाँ बी ने ये स्टेटमेंट दी थी, एज फार एज दैट स्टेटमेंट गोस, वो जो आप जो लाइन कर रहे हो ना रणदीप जी, एज फार एज दैट स्टेटमेंट इज कंसर्न, इट इज अ डायरेक्ट आई एम सेइंग दैट ओनली सर, मैं यही कह रहा हूँ कि हम सिर्फ कॉन्सिक्वेंस Only मर्डर statement. देख रहे हैं या स्टैबिंग देख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि वो स्टेटमेंट किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है। पर्पस डिसाइड्स द फेट ऑफ द स्टेटमेंट, वेदर इट इज अ डायरेक्ट, वेदर इट इज हेयरसे। देखिए इसमें जैसे क्या हो सकता है कि मान लो जी इस केस के अंदर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, डिफरेंट सर्कमस्टांस हैज टू बी प्रूव टू एस्टैब्लिश द गिल्ट ऑफ बी, ठीक है। तो वन थिंग इज कि भाई एस्टैब्लिश द गिल्ट ऑफ ए, सॉरी, कि वन थिंग इज कि द स्टेटमेंट व्हिच द बी मेड टू सी, one statement is there, where the court where the C goes before the court and deposes, yes, B told me that he has been stabbed by A, बस that's it। अब वो उसके अलावा जो दूसरे सर्कमस्टांसेस साथ में होंगे, कोई मर्डर वेपन मिला होगा, ए का कोई मोटिव होगा, और वो भी एस्टेब्लिश होने जरूरी है टू प्रूव द गिल्ट ऑफ ए। सिर्फ इस स्टेटमेंट के ऊपर आई डोंट थिंक सो इट विल covered, it will be covered under the hearsay evidence as far as the evidence of murder goes। करेक्ट सर, वही आप बिल्कुल ठीक As बोल रहे far हैं, as the सुरेंद्र सर incident बिल्कुल of ठीक बोल stabbing रहे is हैं। concerned, as far as incident of stabbing is concerned, it is a hearsay evidence, but as far as the statement made by B is concerned, it is a direct evidence, because he had heard it himself, B has said this to him, bas that's it। करेक्ट करेक्ट। आई थिंक समराइज कर लेते हैं सर, 6 मिनट बचे हैं। जी सर। सुरेंद्र जी आपको क्या लगता है कि मेरी इंटरप्रिटेशन ये ठीक है, जो मैं ठीक समझ पाया हूँ क्या, जो रणदीप जी का क्वेश्चन था कि डायरेक्ट एविडेंस और उसको लेके? अगर फ्रैंकली बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूं तो अभी भी उस सेट कंफ्यूजन है, क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं ना वो इंडिविजुअल बिटवीन द लाइंस पढ़ रहे हैं, जो कि मैं नहीं समझता कि मुल्ला की इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि मुल्ला ने अभी भी जो मुल्ला जो कह रहा है ना, या तो वो पैराग्राफ शेयर कर लें, हम नेक्स्ट मीटिंग में उसको कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि वो अभी भी जो कंक्लूड कर रहा है ना वो डाइंग डिक्लेरेशन पे ही कंक्लूड कर रहा है। उसने वो बाइफर्केशन नहीं कर रहा है कि इंजर्ड में ऐसा है और आफ्टर डेथ ऐसा है, वो उसका कंक्लूजन डाइंग डिक्लेरेशन पे ही आ रहा है। टाइम डिक्लेरेशन पे भी वो डायरेक्ट एविडेंस ही कह रहा है सर। सर देखिए डाइंग डिक्लेरेशन पे डायरेक्ट है, लेकिन उसका हमने बताया ना व्हाई दैट इज बीइंग टर्म्ड एज डायरेक्ट, बिकॉज़ दैट इज स्क्वायरली कवर्ड अंडर सेक्शन 32। उसका एक हमने अलग से सेक्शन बना दिया, और वो क्यों ऐसा कह रहा है, इट इज डीम्ड, और वो क्यों डायरेक्ट है ये भी मैं बताता हूं। इट इज डीम्ड दैट द पर्सन हु इज डाइंग हैज मेड हिज स्टेटमेंट हिमसेल्फ, except the fact that he cannot be available because he has died। so उस context में इसको डायरेक्ट माना गया है कि भाई it is direct, but on account of his death he cannot come before the court। सर सेम थिंग आई एम सेइंग, हम सिर्फ एक चीज को दिमाग में रख के चल रहे हैं कि हम सिर्फ डेथ की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ डेथ की बात नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट और इंजर्ड का कॉन्सेप्ट दोनों अलग है सर। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ सर प्लीज। ऐसा है, मैंने सबको सुन लिया, और जो कंफ्यूजन है वो वाकई शर्मा जी वाली बात ठीक है कि आप हेयर से को 32 से जोड़ के देख रहे हैं। देखिए अगर हम डाइंग डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो डाइंग डिक्लेरेशंस के भी कुछ पैरामीटर नॉर्म्स बनाए गए थे कि डाइंग डिक्लेरेशन कौन रिकॉर्ड करेगा, उसके लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाता है, या किस सर्कमस्टांसेस में कौन आदमी उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है। अगर वो जेन्युइन अथॉरिटी है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है तो ये माना जाएगा कि जो वो बी जो उसमें मर रहा था उसने जो स्टेटमेंट दी है उसको डायरेक्ट एविडेंस इसीलिए ही काउंट की जाती है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यहाँ डाइंग डिक्लेरेशन का क्वेश्चन नहीं है हमारे सामने,
हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि एक इंसिडेंट हुआ, ए ने बी को मारा, ठीक है, बी मरा नहीं है, और ए के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है और उस पे चार्ज लगाया जाता है। सी आके ये स्टेटमेंट देता है कि मुझे बी ने बताया कि ए ने मुझे मारा, लेकिन बी विटनेस बॉक्स में नहीं आता। तो कोर्ट को नहीं पता कि जो बी ने सी को बताया है वो सही बताया है या गलत बताया है, क्योंकि सी ने ए और बी के उस इंसिडेंट को नहीं देखा है। तो वहां पर जो सी की स्टेटमेंट आ रही है ना रणदीप जी, वो हेयर से आ रही है। ऐसा है सर एक मिनट मान मैं लीजिए- इंटरप्ट करूं, एक बार मैं इंटरप्ट करूं सर। जी सर। मुझे ना एक चीज क्लियर हुई है, रणदीप जी की क्योरी अगर मैं सही समझ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। रणदीप जी कहते हैं कि देयर आर टू स्टेटमेंट मेड बाय सी। जी एक स्टेटमेंट सी ये कहता है कि मैंने बी को सुना, जी बी ने मेरे को डायरेक्ट बोला, जी वो तो होगी डायरेक्ट एविडेंस क्योंकि बी ने मेरे को बोला। जी। और बी ने क्या बोला वो होगी मेरी हियर से एविडेंस। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक मिनट मैं जो मेरे को लगा कि शायद ये हो सकता है इशू कि जो सी ने दो चीज कही है एविडेंस में आके। एक तो ये कि बी ने मेरे को कहा, क्या कहा वो तो हियर से हो गया, और बी ने जो मेरे को कहा, जो मैं कह रहा हूँ कि बी ने मेरे को कहा, वो डायरेक्ट हो गया। रणदीप जी क्या है ये बात है क्या? एक मिनट यही बात है सर। हाँ, क्वेश्चन यही है सर, मैं वही कह रहा हूँ। देयर आर टू थिंग्स सर वही इसमें एक सर्कमस्टांस इसके अंदर और हो सकता है। मान लीजिए ए ने पहले सी को कहा, बी ने पहले सी को कहा कि ए ने मुझे चाकू मारा, लेकिन बाद में वो ए को एक्यूज ना करके डी को एक्यूज करता है और पुलिस डी को चालान कर देती है। अब डी हो सकता है वो स्टेटमेंट कोर्ट में ये प्रूव करवाना चाहिए कि कभी ए ने बी ने सी को ये कहा था कि भैया मैं, डी ने नहीं, ए ने चाकू मारा है। तो वो एविडेंस क्या हियर से एविडेंस होगी या डायरेक्ट होगी? उस टाइम वो डायरेक्ट एविडेंस हो सकती है, क्योंकि उसने सीधा अपने मुंह से ये कहते सुना कि भैया मुझे तो ए ने चाकू मारा था, और पुलिस ने चालान कर दिया डी को। तो वहां तो वो डायरेक्ट एविडेंस हो सकती है मेरे हिसाब से। उसकी जो स्टेटमेंट थी, मैंने अपने मुंह से सुना था, इसने बोला था कि तो ए ने चाकू मारा। रणदीप जी का क्वेश्चन ना एक ही डिपोजिशन के अंदर दो लाइन की इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए है कि वो कहते हैं एक लाइन में तो डायरेक्ट एविडेंस और एक लाइन में हियर से। नहीं सर, ऐसा है, एक स्टेटमेंट में दो डेपुटेशन नहीं बनेगी इसके अंदर। हम उसको क्वेश्चन दे, मैं वही तो कह रहा हूँ। क्वेश्चन रणदीप जी का ये है कि सी ने स्टेटमेंट दी कि बी ने मुझे कहा, और बी फिर दूसरी स्टेटमेंट दी बी ने मुझे ये कहा। सर यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ यही है, अगर बी अलाइव है तो वो स्टेटमेंट। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ रणदीप की प्रपोजिशन तो ये है, वो अलाइव और सेकेंडरी चीज है कि बी के लेके आएगा। नहीं, रणदीप जी की रणदीप से पूछ लेते हैं। सर एक मिनट अभिषेक जी, एक मिनट। रणदीप जी की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट रणदीप जी एक ही स्टेटमेंट में दो कंटेंशन लेके चल रहे हैं। फर्स्ट कंटेंशन ये है कि वो एक स्टेटमेंट वो ये दे रहे हैं कि जी बी ने, वो कोर्ट में आके ये कहते हैं कि भैया ए ने बी को मारा, सिंपल। ऐसा ही ना रणदीप जी? नहीं सर, नहीं। तो एक मिनट, सी कहता है बी ने मुझे बताया कि ए ने बी को मारा। ये होगी एक स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? ये इसी स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट है सर। इसी स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट है सर। ये इसी स्टेटमेंट में पहली स्टेटमेंट क्या है आपकी? अब इसमें विद रिस्पेक्ट टू ये देखा जाएगा ये स्टेटमेंट एडमिसिबल किस लिए हो रही है। या तो ये एज अ स्टेटमेंट एडमिट हो रही है, या फिर कॉज ऑफ डेथ एडमिट हो रही है। उस पर डिपेंड करता है कि ये एविडेंस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। सर आप परवीन सर बोल रहे हैं, पुष्कर जी परवीन सर बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। सॉरी, मैंने ये बोला था कि आज मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, बट आप लोगों की डिस्कशन सुन रहा था मैं, तो मुझे लगा कि शायद मुझे बोलना चाहिए। जी भैया, एक्सप्लेन करने की। हाँ बताइए ना। जो मैं समझ पाया हूँ ना, रणदीप जी की जो स्टेटमेंट थी उसको थोड़ा सा फैक्ट्स को इलेबोरेट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से और बेटर तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। रणदीप जी की स्टेटमेंट ये थी, मान लो 4 जून को ए ने बी को चाकू मारा, 5 जून को बी और सी की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में
बी ने सी को बताया कि ए ने मुझे कल चाकू मारा। अब जब सी कोर्ट में आके एविडेंस दे रहा है तो वो ये बता रहा है कि 5 जून को मुझे बी ने बताया कि ए ने मुझे चाकू मारा। अब वो जो स्टेटमेंट है उसका कुछ पार्ट तो डायरेक्ट एविडेंस है, कुछ इनडायरेक्ट या हियर से है। जो चाकू मारने का फैक्ट है वो हियर से या इनडायरेक्ट एविडेंस है, क्योंकि वो उसका आई विटनेस नहीं था। जो बी और सी की बातचीत होती है 5 जून को, वो डायरेक्ट एविडेंस है। उसके वो जो स्टेटमेंट है उसकी, वो डायरेक्ट है, वो हियर से नहीं है। यस मेरे ख्याल से शायद यही है सर, यही तो एज इट इज। आपने बिल्कुल सरल शब्दों में समझा दिया। हम इतनी देर से यही बहस करते हैं। मुझे लगा चलिए आप कंटिन्यू कर लीजिए। मेरे ख्याल से ये रिजॉल्व हो गया आपका, हो गया कुछ सर? इसमें बचता है? हो गया सर। थैंक यू। ठीक है सर, फिर आज हमारा हेयर से वाला कंप्लीट है। किसी का कोई क्वेश्चन? मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी सर्वेश जी बोलिए। ये इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं है, बट ये मेरा एक क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बताता हूँ। हियर से के 2 टाइप्स हैं, एक तो है एक्सप्रेस्ड एंड एक इम्प्लाइड। जी जस्ट अ मिनट। जो एक्सप्रेस हियर से है, और मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। आई एम कॉलिंग मिस्टर एक्स बिकॉज ही सेल ड्रग्स। ये है एग्जांपल एक्सप्रेस हियर से का। एंड इम्प्लाइड हियर से है, आई एम कॉलिंग मिस्टर एक्स बिकॉज आई वांट टू बाय ड्रग्स फ्रॉम हिम। ये दोनों स्टेटमेंट्स अलग हैं। अब मुझे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हियर से में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा। जी प्रवीण भाई साहब आप बताएंगे? मुझे एक्चुअली क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट करोगे या कोई और एक्सप्लेन कर दे? मैं स्क्रीन शेयर करवा देता हूँ। ये सुरेंद्र जी आपको समझ में आया? नहीं सर, नहीं आया। अभिनव जी एक बार एग्जांपल देख रहे हैं सर? नहीं आया। सर क्वेश्चन तो सिंपली ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लाइड हियर से और एक्सप्रेस हियर से। बिल्कुल ठीक, बट आई डोंट नो द आंसर। अच्छा सर्वेश बताना क्या था? सर वो बुक में पेज 27 है, मैंने आपको शेयर किया है। वो आ नहीं रहा मेरे पास। व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर लो सर। नहीं मेरे को वो बुक नहीं समझ में आई ना, कौन सी बुक है जो आज दी है? वो वाली है? हाँ जी सर। 27 पेज के ऊपर? हाँ जी। 27 पेज में कौन सा पैरा? काइंड्स ऑफ हियर से। काइंड्स ऑफ हेयर से, ठीक है मैं एक बार शेयर करता हूं उसको। हाँ आ गया, दिख रहा है? हाँ जी सर। यही है एक्सप्रेस हेयर से एंड इम्प्लाइड हेयर से। सर। बेसिकली इसका आंसर भी आगे दिया हुआ है। हाँ इसमें आंसर दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा का। राइट। और बेसिकली ये फॉरेन का कॉन्सेप्ट है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज
क्या बोल रहे थे सुरेंद्र जी, प्लीज दोबारा बोलेंगे? मैंने कहा सर इसका आंसर भी इसमें दिया हुआ है। बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा का प्रिंसिपल है जो उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ऐसा इंटरप्रेट नहीं, मतलब हमारी नॉलेज में नहीं है किसी अथॉरिटी में ऐसा किया हो। हो सकता है किया हो, बट हमारी नॉलेज में। जैसे नीचे एक इंडिविजुअल और कंपोजिट हेयर से भी एक दिया हुआ है, वो हमने जैसे आज तक वी हैव नेवर हर्ड दिस लीगल डिक्शन इन इंडिविजुअल एंड कंपोजिट हेयर से। उसका आंसर हमने पढ़ा नहीं है, बट ऐसा हम सुनते हैं। मान लो जैसे एक बाजार में किसी ने गोली चलाई और किसी की डेथ होगी। अब मैं जाऊं उस जगह पे एंड मुझे कोई आके बताए कि मेरा एक दोस्त कि यहाँ पे ऐसा कि हुआ कि ए ने बी को गोली मारी, तो वो तो हो गया इंडिविजुअल हियर से। एंड कंपोजिट हियर से हो गया कि 4 लोग खड़े होके बात कर रहे थे, मैंने बीच में चला गया, उनकी बातें सुन ली, वो हो गया मेरा और मैंने जाके एविडेंस दे दिया कोर्ट में कि मैंने सुनी ये बात, वो हो गया हमारा कंपोजिट हियर से। बट ये इंडियन कंटेक्स्ट में इस्तेमाल नहीं होते मेरे ख्याल से, दोनों ही चीजें। मतलब वैसे ठीक है ये एकेडमिक मेरे ख्याल से डिस्टिंक्शन के लिए ठीक है ये चीज, पर प्रैक्टिकली मेरे ख्याल इसका कोई ज्यादा यूज भी नहीं है इस डिस्टिंक्शन का। यस हाँ वैसे ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा ने एक्सप्लेन कर रखा है इसको, तो डिस्टिंक्शन तो है। जी, किसी और की सुप्रीम कोर्ट ऑफ कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा ये कह रही है देयर इज नो मीनिंगफुल डिस्टिंक्शन बिटवीन देम। डिस्टिंक्शन है बट मीनिंगफुल डिस्टिंक्शन नहीं है। मतलब 2 वर्ड अलग अलग यूज कर दिए, इंप्लाइड और एक्सप्लिसिट, एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस और इंप्लाइड वैसे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड्स हैं। और दूसरा मतलब यस मार्केट में गया और उसने उसको चाकू मारते देखा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गैंगस्टर है। वो इंप्लाइड मीनिंग डजंट स्टैंड। इंप्लाइड मतलब तो कुछ भी हो सकता है सर्जन भी हो सकता है वो टेररिस्ट भी हो, कुछ भी हो। तो आई डू नॉट फील कि दिस हियर से इज एनी वैलिड हियर से। हाँ, आकृति आपकी कोई क्वेरी? संदीप जी? नहीं सर। तो ये सेशन कंक्लूड करें। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दें।